Hello, guys, and welcome to Cricket Caviar. But today we are not going to talk about cricket. Something historic has happened, and आज मैं वो historic moment के बारे में बात करना चाहता हूँ जो 34 years के बाद हुआ इंडियन टेनिस हिस्ट्री में. First time a singles player has defeated a seeded player in Grand Slam. For those who are not initiated about tennis, let me tell you, every Grand Slam tournament starts with 128 players in the draw. Out of these 128 players, there are 32 selected players who are seeded. And they are the top ranked players. And only in case of Wimbledon, कुछ ऐसे भी tournaments होते हैं जैसे Wimbledon, जो लोग अपना seeding, they don't follow the ATP ranking. They make their own seeding. But anyway, 32 seeds are decided, and based on that, the draw is made so that it is balanced. Players are from every kind of rankings. They are mixed into the draw, and From every caucus. from every caucus. Yeah, every caucus is considered. Every caucus is considered, and Trump supporter finally wins. Anyway, so a historic moment for Indian tennis today. तो मैं देख रहा था how long has been the journey. 34 years. I was just going through the number of chances जो हमें मिले. मैं देख रहा था 90s में गया मैं. So last time when a seeded player was defeated by an Indian player, it was Ramesh Krishnan, who actually beat Max Wilander, who was the top seeded player. मतलब टॉप सीडेड प्लेयर को हरा के हम इतना खुश हो गए थे कि उसके बाद हम सोचे अब हम कोई सीडेड प्लेयर को नहीं हराएंगे. उसको हराया रमेश कृष्णन ने मैट्स विलेंडर को 1989 ऑस्ट्रेलियन ओपन में. एंड आफ्टर दैट देयर वेर सम ओकेजन्स एक्चुअली. 1996 was the peak time, you can say, of Indian tennis because Leander Pace won the Olympic bronze. And Yeah. उसी समय आकाश को तो पता ही होगा कि 96 में लिएंडर पेस वन द ओलंपिक ब्रोंज. और Yeah, उसी के बाद but शिखर वो मेडल 16 साल के बाद आया था, 1980 के बाद. हाँ, इट वाज अ हिस्टोरिक ब्रोंज मेडल. और उसी के बाद यूएस ओपन हुआ उसी कंट्री में. अटलांटा से न्यूयॉर्क गए हम लोग. और इनफैक्ट लिएंडर पेस वाज अगेन हैविंग अ रीमैच वर्सेस एंड्रे अगासी. और एंड्रे अगासी वाज टॉप सीडेड प्लेयर अगेन. एंड लिएंडर पेस वो वन द फर्स्ट सेट. मतलब वहां पे एक चांस था हमारे पास. देन महेश भूपति वर्सेस कार्लोस मोया इन 1998 विंबलडन. कार्लोस मोया जो कि क्ले कोर्ट स्पेशलिस्ट माना जाता था, उसके अगेंस्ट महेश भूपति हैड अ गोल्डन चांस. ही वाज 2 sets all. मतलब द गेम वेंट इनटू द फिफ्थ सेट, बट कार्लोस मोया वन. There were some more chances. Leander Pace versus Ukrainian player Andrei Medvedev, and Mahesh Bhupati versus Marcelo Rios from Chile. ये सारे chances थे. And of course, Sania Mirza had a lot of chances. Svetlana Kuznetsova, Serena Williams, Maria Sharapova, Venus Williams, सबके अगेंस्ट उसको चांस मिला. बट सबसे इजीएस्ट चांस उसको 2019 में मिला जब उसको 28 सीड मिली थी सोराना क्रिस्टिया, जिसको वो इजिली हरा सकती थी क्योंकि सानिया मिर्जा वाज ऑलमोस्ट up to that level. In fact, she was seeded at one point of time. She became the first Indian woman player to be seeded in a singles tournament, but वो नहीं हरा पाई. And so much of it has gone into the journey. Shakti, I'll first come to you. अभी डेविस कप हुआ था रिसेंटली. वहां पे इंडियन टेनिस का डाउनफॉल को डॉक्यूमेंट किया था. लिएंडर पेस ने बोला था इट विल एटलीस्ट टेक हाफ अ डिकेड फॉर इंडियन टेनिस टू कम बैक टू इट्स ओन. फर्स्ट टाइम इन डेविस कप हिस्ट्री वी वर रेलीगेटेड टू वर्ल्ड ग्रुप 2, जो कि बहुत लो रैंक टीम्स का ग्रुप होता है. I think उसमें इंडिया वर्सेस पाकिस्तान था, in which Nadal, I'm sorry, Nagal. Nadal नहीं, Nagal, जिसमें सुमित basically he pulled out. He didn't play that, and that is the reason why I think he was not. So वो मुझे I don't know the funda that how a wild card is, how a wild card comes into play, and is the sports body also has a hand in nominating people as a wild card, because वो एक theory किसने tweet किया था that because he pulled out of the Davis Cup, so his name was not sent as a wild card by IATA. And till now they haven't tweeted anything about this win, even though random people like Sachin Tendulkar have already tweeted.
Wow. So You must have some guts, bro, to call Sachin Tendulkar random. that is random. So No, actually, uh, their PR agency usually tweets. They don't tweet it. no, that हाँ, is okay, but like मतलब people कोई are भी करे. surprised that the tennis board hasn't yet written anything about it. And but yeah, I don't know what is the wild card concept and how a tennis हाँ, board, or एक्चुअली do they have some वाइल्ड quota कार्ड or का something? I don't नॉमिनेशन भेजता है जो बोर्ड होता है, मतलब कि know. वो वाइल्ड कार्ड का नॉमिनेशन भेजते हैं ग्रैंड स्लैम्स के लिए, एंड देन इट इज अप टू द ग्रैंड स्लैम ऑर्गेनाइजर्स टू कंसिडर whether they want to give wild card to someone. So 3 या 4 Hmm. वाइल्ड कार्ड दिए जाते हैं नॉर्मली. होम जो होम कंट्री के होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया के, उनको दिया जाता है, Yeah. या फिर कोई बड़ा प्लेयर अगर खेल रहा होता है तो उनको दिया जाता है. लिएंडर पेस को 2-3 बार एक्चुअली वाइल्ड कार्ड मिला है विंबलडन और यूएस ओपन में, बिकॉज ही Hmm. कुडंट क्वालिफाई. तो उसको सिंगल्स में, Yeah. क्योंकि डबल्स में वो इतना बड़ा प्लेयर बन गया था, तो Hmm. वो होता है वाइल्ड कार्ड का सिस्टम. बट या यू वर राइट, मतलब उसके बाद लिएंडर पेस ने ये स्टेटमेंट दिया था. और लिएंडर पेस भी एक टाइम पे था एक सिंगल्स प्लेयर मेजर इंडिया का, जिसके बाद द फोकस शिफ्टेड टू डबल्स. मतलब सिंस इट्स एन इजी गेम, Yeah. हमारे Hmm. प्लेयर सब डबल्स, और इजी ग्लोरी है क्योंकि डबल्स में कोई खेलता नहीं है. जैसे आकाश जोशी Right. जो ट्रम्प सपोर्टर है, वो भी बोल रहा था कि यू नो कि Doubles ज्यादा, is not very highly rated in tennis like badminton or या other बिकॉज things. नॉट वेरी स्पेशलिस्ट प्लेयर्स आर देयर फॉर डबल्स. जो सिंगल्स में से ही कोई हार जाता है पहले, तो वो लोग ही डबल्स में चले जाते हैं, जैसे निक किर्गियोस Hmm. या कोई Hmm. ऐसा हमने देखा, वो भी डबल्स जीत जाते हैं. सो Doubles, Even Sania Mirza doubles is is more only successful important. as a doubles player, I think, right? यस, यस, Yeah, yeah. I think doubles is more popular in only Davis Cup or Olympic Games. Otherwise, top players don't play doubles. या दे मोस्टली टॉप रैंक प्लेयर्स डोंट प्ले. मतलब वो जो 50-40 वाले प्लेयर्स होते हैं जिनको लगता है ठीक है हमको कुछ पैसे भी कमाना है, तो हम डबल से थोड़ा वो लोग पैसा कमाने का ट्राई करते हैं. दे ट्राई टू अर्न सम क्विक बक थ्रू डबल्स. Or I दैट्स think someone who has already reached a pinnacle in single, जैसे Navratilova, Venus Williams, ये लोग भी बहुत टाइम, इवन मार्टिना हिंजिस भी खेल रही थी इसके साथ, भूपति के साथ, एक्चुअली if I'm इट not इज wrong. लेस ट्रेनुअस टू द बॉडी. तो तुम ओल्ड एज में खेल सकते हो, मतलब यू कैन प्ले डबल्स Yeah. फॉर अ वेरी वेरी Hmm. लॉन्ग. At the age of 50, Martina won a Grand Slam with Leander in Wimbledon. Yeah. लिएंडर उसको शायद क्रॉस कर देगा. नहीं, अभी तो वो रिटायर हो गया, बट वो भी 44 के इयर्स पे खेल ही रहा, 44 के एज पे खेल ही रहा था वो भी. Maybe Rohan Bopanna. Rohan Bopanna, I think he was the oldest to win a doubles Grand Slam, right? Abhi recently, I think last year in Wimbledon, he became the oldest player ever. Or I oldest think he Indian, I lost, don't or maybe he played the final. I think that is the thing. He didn't won, he I think. lost the final. He lost the He final. lost the final. Okay. हाँ. Hmm. अभी सुमित नागल के बारे में थोड़ा बात करते हैं. तो Yeah. एक्चुअली ही इज फ्रॉम झाज्जर हरियाणा, एंड वन इम्पोर्टेंट थिंग दैट हैपेंड लास्ट ईयर 2023 में, इसने बोला था कि मेरे पास बैंक अकाउंट में सिर्फ 900 यूरोज है. सिर्फ 900 यूरोज है और मेरे पास अभी पैसा नहीं है. आई एम इन्वेस्टिंग ऑल माई अर्नड मनी इनटू ट्रैवलिंग, बिकॉज टेनिस इज अ टफ स्पोर्ट. दैट हैज बीन द पार्ट ऑफ द डाउनफॉल ऑफ इंडियन टेनिस, क्योंकि देर इज नो सिस्टम. जैसे अमेरिका में कॉलेज टेनिस सिस्टम है. कॉलेज मतलब यूनिवर्सिटी में तुम जाके, दे विल स्पॉन्सर यू, दे गिव यू स्पोर्ट्स कोटा टू प्ले टेनिस. वैसे ही पीट सैम्प्रस और ये लोग सब आते हैं मतलब अमेरिका से. यूरोप में तो रिच लोग हैं, तो वो लोग के लिए इजी है खेलना. कंपैरेटिवली इट्स मच इजियर फॉर देम बिकॉज दे आर ऑल रिच फोक्स. जैसे डियोकोविच का होटल है, नडाल का तो अपना ही पूरा कैसल है वो, मतलब तो दे आर रिच पीपल. बट प्रॉब्लम है यूजुअली अकेडमीज भी अच्छे हैं वहां पे. अकेडमीज भी अच्छे हैं जो स्पॉन्सर कर देते हैं. बट थर्ड वर्ल्ड कंट्री या मतलब कि ग्रोइंग इकोनॉमीज जो होते हैं उनके लिए डिफिकल्ट होता है. मतलब कि एशिया से ही तुम देख लो कितने कम प्लेयर्स आए हैं. थाईलैंड Only से one player has won Grand Slam final. That's Lina. लीना. Lina. हाँ, Okay. लीना. I think Asia में either you have to be a prodigy or I don't know, because at least in या India फिर में आप तो वही फॉरेन है. में रहे, या ओसाका फिर के आपको जैसा foreign फॉरेन में जाना रहे हो पड़ेगा. बचपन Yeah. से.
हाँ, ओसाका वो तो मिक्स्ड ब्रीड है ना, मतलब मुझे तो लगता नहीं वो जापानीज भी है या नहीं, मतलब शी इज अ ब्लैक जापानीज कुछ, Yeah. हाँ, ब्लैक अमेरिकन जापानीज, एनीवे नॉट गोइंग इनटू द रेस Yeah, yeah, डायनेमिक्स, बट yeah. बट नागल ने जो आज किया है, तो सुमित नागल फर्स्ट टाइम केम इनटू माय अटेंशन व्हेन ही एक्चुअली took a set from Roger Federer in 2019, I think it was US Open, and from there onwards he had a lot of downs, I will say बहुत सारा डाउन उसने देखा है, एंड मोस्ट टेरिबल डाउन वाज कि वो टॉप 300 के रैंकिंग से मतलब निकल गया था बीच में, और बहुत इश्यूज हुआ था फाइनेंशियली, उसको कोई टूर्नामेंट भी जीत नहीं रहा था, बट फाइनली ही हैज कम गुड। एंड मैं थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करना चाहता हूँ आज के मैच में। सुमित नागल has not lost a set in this in the 2 qualifier matches that he played and the 3 sets that he played today. Alexander Bublik of Kazakhstan, पता नहीं पहले तो अलेक्जेंडर को ये लोग सारे रशियन कंट्रीज जो रशियन ब्लॉक है ना, ये लोग साशा क्यों बुलाते हैं, वो साशा जर्मन करते हैं, और हाँ। हाँ, साशा, राइट। क्योंकि आज भी वो इतने साशा कमेंट्री है में कि पूछो। साशा इज फ्रॉम, साशा बहुत हैं, ज्वेरेव को भी तो साशा बोलते हैं। हाँ, ज्वेरेव को भी शाशा बोलते हैं, वही तो शाशा उसको बुला रहे थे, शाशा बुबलिक, पता नहीं क्यों, बहुत वियर्ड लग रहा था, बट he's क्या शाशा, पता अलेक्जेंडर को साशा बोलते हैं, मे हाँ बी। हाँ, अलेक्जेंडर को साशा बोलते हैं, मे बी वो अलेक्जेंडर द ग्रेट जो था वो शहनशाह था, तो उससे वो लोग डिराइव कर लिए कुछ, शाशा मे बी ऐसा कुछ, एनीवे। तो सो दिस गाय प्लेज अलेक्जेंडर बुबलिक जो है, ही इज अ बिग सर्वर, तो इसका 1 और 2 जो बॉक्सिंग में नॉकआउट होता है, 1-2 जो बोलते हैं, बिग सर्व एंड बिग फोरहैंड, उस तरह का गेम है, एंड इट वाज गोइंग टू बी वेरी डिफिकल्ट फॉर सुमित टू प्ले हिज स्टाइल ऑफ प्ले विच इज क्ले कोर्ट टेनिस। बेसिकली सुमित का जो भी सक्सेस भी आया है, मतलब कि वो नॉर्मली क्ले कोर्ट काइंड ऑफ टेनिस में आया है, जैसे कि उसने बुएनोस एरिस में एक टूर्नामेंट जीता है, रोम में उसने काफी अच्छा खेला है, मतलब ऐसे टूर्नामेंट्स में वो ज्यादा अच्छा खेलता है, क्योंकि हिज गेम ही डजंट हैव दैट फ्लैट फोरहैंड, उसका टॉप स्पिन वाला फोरहैंड है उसका, जो टॉप स्पिन वाला फोरहैंड होता है वो बाउंस ज्यादा करता है, और उसके पास फास्ट सर्विस भी नहीं है, उसके पास किक सर्विस है जो स्पिन करके अगेंस्ट अगेन बाउंस ज्यादा करता है। तो अगर तुम मैच का, वैसे मैच तो मैंने देखा नहीं, मैं ऑफिस में था, एंड इट वाज अ प्लेजेंट सरप्राइज दैट ही वन दिस मैच, बट मैंने जब हाइलाइट्स देखा तो भाई बुबलिक अपना रैकेट तोड़ दिया फ्रस्ट्रेशन में, बिकॉज वो जो हाई बॉल्स आ रहे थे, मतलब हाई सर्विस जो आ रहे थे सुमित के, ही वाज नॉट एबल टू टैकल दोज हाई सर्व्स, एंड इतना अच्छा टॉप स्पिन फोरहैंड से क्या होता है, यू गेट एंगल, जो कि एंगल मिलता है, you can stretch out your opponent and make them run a lot across the court. And Sumit का जो cross court forehand है वो one of the best है with top spin. It creates an angle where the player has to fetch the ball from the corner and again run to the other corner. So he's a very good utilizer of that clay court top spin forehand जो नडाल एक्चुअली खेलता है, नडाल एंड नगाल, मतलब जैसे नाम भी इंस्पिरेशन है, उनका प्ले ऑफ स्टाइल भी एक इंस्पिरेशन है उससे। सो यू कैन सी द स्टैट्स ऑफ द मैच, मतलब कि भाई एक एस मारा है बंदे ने, मतलब इससे पता चलता है इसका सर्विस कुछ भी नहीं है, मतलब कि ऑब्वियसली इज नॉट गोइंग टू ट्रबल यू विद हिज सर्विस, और बुबलिक ने 13 एसेस मारे, बट ही हैज 75% ऑफ फर्स्ट सर्व इन, मतलब कि ये सेफ सर्विस करता है, और किक सर्विस करता है जो कि हमेशा लैंड करेगा ही करेगा। तो दैट इज हिज गेम प्लान, एंड ही एग्जीक्यूटेड दैट गेम प्लान टू परफेक्शन। और बुबलिक तो इतना फ्लॉप हुआ है, उसने पहले 4 सर्विस गेम होल्ड ही नहीं किए, मतलब ही मेड 9 double faults which is criminal, and the match point itself was a double fault in fact. So he totally broke down mentally, and credit to Sumit Nagal, or good to see the, I think, Telugu crowd in Melbourne fully supporting him, supporting a Haryanvi boy, and great achievement for India, and I'm incredibly proud that this has happened after 34 years, such a long wait. एक्चुअली बुबलिक का विकिपीडिया पेज में पढ़ रहा था,
तो उसमें एक कंट्रोवर्सीज का सेक्शन है। सो तू जो बोल रहा था कि वो रैकेट वगैरह तोड़ा है, तो ही हैज अ हिस्ट्री ऑफ स्मैशिंग रैकेट्स एंड इनफैक्ट एक मैच में मतलब लिखा है विकी में कि ही वाज प्लेइंग दिस गाय डोमिनिक थिएम, जो कुछ इंजर्ड हो गया था, and he lost that match. Bublik lost that match, and after that, he is apparently recorded saying to a camera that I am sick of giving careers to disabled people. तो मतलब ऐसे ही थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है, नॉट किर्गियोस बट या उसका थोड़ा सा इजी है। या वाह वाह। एंड मतलब कि मैं बोल रहा था ना आज की सारे स्पोर्ट्स इंडिया में ग्रो किए, मतलब बैडमिंटन हैज ग्रोन लीप्स एंड बाउंड्स एंड even table tennis has managed to grow stably, and kabaddi has grown, cricket has grown exponentially, but the only football and hockey are also making kind of comebacks, but I think I think women's hockey has improved a lot in last few years, I think. क्योंकि women's hockey, men's 1980 के hockey, बाद men's क्योंकि hockey 1980 में जो ओलंपिक थे, जो सोवियत यूनियन में थे, इन दैट ओलंपिक्स एक सैनी सिस्टर्स थे छत्तीसगढ़ के, दुर्ग के, दे प्लेड एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल मैच, और वो ओलंपिक टीम इवेंट जिम्बाब्वे जीत गई थी। मतलब हमारी टीम इतनी खराब थी उस समय की जिम्बाब्वे जैसी स्क्रैच टीम जीत गई थी 80 उसमें ओलंपिक। शॉन विलियम्स जो उसके क्रिकेटर है उसकी मम्मी थी, शॉन विलियम्स जो जिम्बाब्वे का क्रिकेटर है उसकी मम्मी कॉलिन विलियम्स, मैंने ये ग्रुप में डाला था एक्चुअली। और उसके बाद से 2016 तक ये ओलंपिक में क्वालिफाई नहीं किए थे। फिर उसके बाद ये 2016 में किए, दे फिनिश्ड एट लास्ट, एक ड्रॉ था जापान के साथ। 2020 21 ओलंपिक जो हुआ उसमें ये मतलब ऑस्ट्रेलिया को हराए, जो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था, और नियरली ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल मैच खेले जो हार गए ग्रेट ब्रिटेन से। तो काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। अभी झारखंड में टूर्नामेंट चल रहा है ओलंपिक क्वालिफायर। तो मेरा पॉइंट वही था कि टेनिस इज द ओनली गेम विच हैज टोटली डिप, मतलब कंपेयर्ड टू अदर गेम्स which have improved, and the culture of sports has also got better. बट अभी देखते हैं, ये ओनली फर्स्ट राउंड है, मुझे ज्यादा उम्मीद नहीं है क्योंकि सुमित का गेम एक्चुअली है नहीं, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट कोर्ट्स के लिए बना नहीं है, तो अभी मुझे डाउट है। नेक्स्ट इज जुनचेंग शांग ऑफ चाइना, ही इज अ चाइनीज के वाइल्ड सब कार्ड, कुछ है। he is actually a wild card, Shakti. So matlab ki he's a wild card, and he's an 18-year-old. Akash loves Trump, but he also loves his Chinese prince. So No, उसके लिए I don't बहुत like this Chinese prince. My Chinese prince is from badminton circuit. No, not from tennis. प्रिंस इज प्रिंस, चाहे कोई भी सर्किट का हो। तो तो ये होगा, देखते हैं थर्सडे को ये मैच होगा, एंड विल बी वेरी इंटरेस्टिंग हिस्टोरिकल मोमेंट, बट कैन वी गो ऑन टू क्रिएट मोर हिस्ट्री, दैट विल बी द इम्पोर्टेंट थिंग टू सी। थर्ड राउंड में पहुंचना बहुत बड़ी बात हो जाएगी शिखर। बहुत बड़ी बात हो जाएगी, थर्ड राउंड में और सिंगल्स में पहुंचना बहुत बड़ी बात है। मैं मतलब क्या, तो थर्ड राउंड कार्टिनोज के अगेंस्ट होगा शायद, मैं देख रहा था आज। तो एक्चुअली सानिया मिर्जा फोर्थ राउंड तो पहुंची थी, लेकिन वही है ना कि थर्ड राउंड पहुंचना इज, मतलब मेंस में तो बहुत बड़ी बड़ी बात है, मतलब कि यू आर इन द टॉप 32, दैट मींस तुम टॉप 32 में हो, तो दैट्स अ बिग अचीवमेंट। एनीवे, लेट्स मूव टू बैडमिंटन, थोड़ा बहुत उस पे बात करते हैं। आकाश, आई विल आस्क यू टू स्टार्ट कि इस बार मलेशिया में आज तक कोई भी इंडियन मैन और वुमेन, मेन सिंगल्स और डबल्स और वुमेन सिंगल्स और डबल्स, क्यों इंडिया के मतलब बैडमिंटन में इतना ग्रोथ हो गया पर हम मलेशिया का भी कॉन्कर नहीं कर पाए? व्हाट इज द रीजन? सात्विक चिराग। मलेशिया में ये नहीं है, क्योंकि पहली बार जब मतलब जो सेमीफाइनल में, जो मुझे याद है 2015 में, साइना नेहवाल को उस समय की ओलंपिक चैंपियन से खेलना पड़ा था, ली ज्योरे से, तो काफी क्लोज थे, इट वाज 21-18 समथिंग लाइक दैट। तो ऐसा नहीं था कि हम नहीं कर पाते, मतलब लक नहीं था। इस बार लक क्लिक किया, बट आई थिंक फाइनल दे लॉस्ट बिकॉज ऑफ द जजमेंट। मेरे हिसाब से टॉस के बाद समय उनको दूसरी साइड लेना था, क्योंकि टॉस का बहुत इफेक्ट पड़ता है, मैं आपको पहले भी बताया था। और उस दिन
आपको रियलाइज भी हो गया होगा कि कैसे टॉस कितना बड़ा इफेक्ट करता है। 10-5 10-7 का लीड कुछ नहीं होता है 11-7 का जब साइड चेंज होता है। But I think it was a good performance. They defeated world champion and one Chinese player, but they lost in the finals to Liang Cheng and Liang Wei Kang and Wang Cheng. Okay. So meanwhile, just to update viewers, Shakti, before I come to you with badminton, भाई सुमित नागल का किस्मत बहुत खराब है। थर्ड राउंड अगर वो जीत भी जाता है ये मैच, तो थर्ड राउंड में कार्लोस अल्काराज है। कार्लोस अल्काराज Oh shit. हाँ, Shit. क्योंकि उसका मैच है लोरेंजो सोनेगो के साथ, वो जीत ही जाएगा। वो सेकंड सीडेड है कार्लोस अल्काराज, सेकंड सीड आफ्टर डियोकोविच। सो या But थर्ड at least राउंड, center court में मैच तो मिल जाएगा उसको। हाँ दैट विल बी, एटलीस्ट रॉड लेवर एरिना में खेल लेगा। हाँ रॉड लेवर एरिना में एटलीस्ट मतलब ही गेट्स अ चांस, तो बहुत अच्छा होगा। मुझे ये लगता है क्वीन तो मर गई, ये रॉड लेवर कम मरेगा, इतने सालों से हर टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट बन के जाता है। शक्ति, व्हाट वाज योर हाईलाइट ऑफ द वीक? मतलब कि जो भी स्पोर्ट्स हुए, I think वो semis वाला काफी surprising था because मतलब they were all they like Satvik and Chirag, they were सेवन गेम पॉइंट्स था शायद जो बचाए थे yeah. So उसमें। first set they had won. The second set they were almost like on the verge of losing. They were like trailing 14-20, like just like they were just 1 point away, but they won it and the match ended there. So and that was against the world champs. तो वो तो काफी सही कमबैक था। मतलब इनफैक्ट आई डिड नॉट इवन नो कि फाइनल्स कब है। बट हुआ ये, मतलब अगर सेमीज का मैं एनालिसिस करूं, जब वो 7 पॉइंट गवाए, किम वॉन हो और सॉरी किम जो भी है, मतलब स्यू संग जे और किम मिन योक जो खेल रहे थे, दे वर प्लेइंग फ्रॉम द वेरी बैड साइड ऑफ द कोर्ट। एंड जब आप बैड साइड ऑफ द कोर्ट से खेलते हो, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्व इन डबल्स, and then you can lose 6-7 points consecutively. Because if you see the final game, we were leading 10-3, but we lost the match. That is why it is very important to always go with the bad side and try to win an opening game with little bit of difficulty. But in second game, you should मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप जो थर्ड गेम है वो आप अच्छे एंड से फिनिश करें, अदरवाइज आप बैडमिंटन में हार सकते। तो मतलब फर्स्ट, तू बोल रहा है फर्स्ट गेम हार जाना चाहिए, मतलब फर्स्ट गेम में बैड साइड चूज करो। फर्स्ट गेम हमेशा बैड साइड से चूज करना चाहिए, उसमें दम लगा लो, और उसमें अगर आप दम लगा के जीत गए तो मोर और लेस अब सेकंड गेम में जीतने के आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। बट जो साइकोलॉजिस्ट होंगे तो वो लोग तो ऑपोजिट बोलेंगे कि तुम फर्स्ट सेट जीतो तो तुम्हारा साइकोलॉजिकली यू विल बी डोमिनेटिंग, एंड फिर चांस है कि तुम्हारा पास मोमेंटम रहेगा। ये भी ठीक है, बट जो स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स होते हैं जिनके बीच में डिफरेंस कम होता है, इफ यू सी द 2016 ओलंपिक फाइनल, कैरोलिना वर्सेस सिंधु, जो सिंधु थी ऑप्टेड फॉर अ गुड साइड, but what happened in the second game, she was thrashed away by Carolina Marin by 21-10 or 12. In third game, शिखर, अगर तुमको कभी रिप्ले देखोगे, actually it was very close in third game, 11 टाइम्स से ही आगे थी कैरोलिना। बट हुआ ये कि कैरोलिना जब अच्छे साइड से खेली तो होता क्या है ना शिखर, जब आप पंच क्लियर करो, शटल को मारो पीछे, तो वो बाहर जाने के बदले ऑन द लाइन टच करता है, और वो खेलना बहुत मुश्किल होता है बैडमिंटन। इसीलिए हमेशा साइड सोच के चूज करना चाहिए। एक्चुअली जो फाइनल था उसमें भी इट वाज ऑलमोस्ट अ रिपीट ऑफ ऑब्वियसली नॉट गोइंग इन फेवर ऑफ इंडिया। दे वर लीडिंग द लास्ट सेट 3-10 बट दे एंडेड अप, सो एंड वही मतलब आकाश बोल रहा है कि दे एंडेड अप प्लेइंग इन रॉन्ग साइड। सो एक गलती और की है जो मुझे जो लगता है, ये जो वैंग चैंग है, आई थिंक ही इज द बेस्ट प्लेयर। वो पहले मिक्स डबल्स खेलता था जूनियर्स में, तो यूजुअली जो मिक्स डबल्स खेलता है उसका नेट प्ले बहुत अच्छा और बहुत फास्ट होता है। तो इन्होंने एक गलती किया कि नेट गेम इनको जब भी लियांग के अगेंस्ट खिला रहे थे, दे वर गेटिंग पॉइंट क्वाइट इजीली, तो इन्होंने लियांग को नेट में खिलाने के बजाय पीछे से खिलवाया, तो लियांग पॉइंट ज्यादा ले लिया और ये गलती कर ली।
भाई लियांग तो मेरा फेवरेट बन गया है, वो इतना हंसता है, वो चाइनीज लगता ही नहीं है मुझे तो। वो मतलब लियांग नहीं है भाई, वो वैंग चैन है जो नहीं हंसता है। नहीं, लियांग लियांग मैंने भी देखा भाई। और लियांग क्या वो मोटू, पतला वाला बोल हाँ रहा है या मोटू मोटू जो थोड़ा मोटू मोटू हेवी है? कितना हंस रहा था, कितना मोटू, खुश था। अच्छा। हाँ लियांग हाँ लियांग। मोटू हमेशा हंसता रहता है क्योंकि वो चाइना का सबसे यूजलेस मेंस डबल्स प्लेयर है मेरे हिसाब से। वाह, वर्ल्ड नंबर 1 है तो वो यूजलेस हो एंड गया है। वो एंड में काफी अच्छा शॉट्स भी मारा है भाई, एंड में। हाँ देखो वो वो एंड में देखो, देखो अगर वो एंड में तुम देखोगे शॉट्स, इट वाज ऑलवेज फ्रॉम द बैक साइड ऑफ द कोर्ट। अगर भाई वो जो मैच को भी है फिर से भाई, देखोगे। किया उसने यार, मतलब ऐसा भी नहीं है कि वो ही इज पार्ट ऑफ द डबल्स टीम यार, तो तू उसको एक को इतना या सुपीरियर नहीं बोल सकता है। मतलब महेश क्योंकि भूपति और लिएंडर पेस में भी सब लोग लिएंडर ना ना पेस यार, को भी। डबल्स अगर बैडमिंटन में ये होता है कि जो फ्रंट फ्रंट में जो खेलता है, ही कंट्रोल्स द पेस ऑफ द रैली। बट अगर आई वो थिंक थोड़ा सा भी शॉट ऊपर मार दे। लियांग ने कुछ बहुत क्रूशियल स्मैश मारे लास्ट में, मतलब कि एंड द वे दे वर हाँ, एंड सेलिब्रेटिंग। में बहुत अच्छा मैच हाँ। था यार। हम्म। हम्म। चाइनीज आई हैव नेवर सीन सेलिब्रेट लाइक दैट, मतलब इतना पम्प्ड अप और इतना वैसे हम्म, सेलिब्रेट कर रहे थे, वो देख के थोड़ा अच्छा लगा। नॉर्मली तो वो लोग का ऐसा लगता है कि जीत की क्यों रहे, मतलब कोई मजा ही नहीं आ रहा है इनको जीतने में, ऐसा लगता है। बट Actually, अब अभी I think the Chinese are very weak in men's doubles, although they have world number one. I don't see them winning Olympic gold medal. देखते हैं ओलंपिक्स में बदला, होपफुली सात्विक एंड चिराग कैन टेक। सात्विक ने थोड़ा सर्विस एरर्स कर दिया यार, चिराग ने भी एक किया लेकिन सात्विक ने थोड़ा ज्यादा सर्विस हम्म। एरर्स, थोड़ा And one क्रिटिकल more thing, मोमेंट्स पे। सात्विक का नेट गेम is also very weak. अगर देखे होगे तो सात्विक को हम्म। एक्सपोज करना नेट गेम में काफी आसान है। थोड़ा मोबिलिटी उसका कम है मुझे ऐसा लगता है, मतलब टांग की हड्डी का। वही हम्म। चीज लियांग के लिए भी है अगर तुम उसको ज्यादा हम्म। देखोगे तो। हम्म। Anyway, Shakti, wanted to ask you about. And one more thing before we end up on badminton. Hmm, Lakshya Sen qualifying for Olympics is getting much tougher. Today hmm, also he lost against Priyanshu Rajawat, and hmm, पिछले 4-5 महीने से वो एक भी मैच नहीं जीता है, अपार्ट फ्रॉम एशियन गेम्स का एक मैच जो टीम hmm. इवेंट में था। क्या हुआ क्या उसको, मतलब वो तो बहुत थॉमस का सब कुछ जिता रहा था इंडिया को, अभी सडनली हुआ क्या? आई डोंट नो, मे बी लॉस ऑफ फॉर्म। प्लेयर्स में हम्म। आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ फोकस भी कह सकते हो थोड़ा बहुत। हम्म। Shakti, I wanted to ask you about AFC Asian Cup. We have less time remaining, but just wanted to talk about most prestigious premier tournament of Asian countries. And इसमें इंडिया फर्स्ट ऑफ ऑल इस बार है क्योंकि दे एक्सपैंडेड इट टू 24 टीम्स, नहीं तो इंडिया ऑलमोस्ट होता भी नहीं था इस टूर्नामेंट में, हम खेल भी नहीं पाते थे। But now that we are here, we have Australia, unfortunately, the 24th ranked team of the world. तो एशिया में तो दे आर इन द टॉप 3। तो हम्म। क्या क्या लगा वो मैच में, डिड यू कैच इट और व्हाट वाज योर? Yeah, so I think वो match I was watching completely. So first half तो it was like just defense game, India trying, and even though Australia ने इतने chances बनाए, India came close. I think एक दो chances ही थे. I एक think तो when सुनील छेत्री के पास भी चांस था, शायद मुझे याद आ रहा है उस हाँ, मैच। चांगते was really good in the left wing, तो उसने एक दो chances बनाए। एंड एंड में आई थिंक एक छेत्री के पास बहुत अच्छा चांस था, बट आई थिंक बियॉन्ड दैट इट वाज ऑल trying to save your ass, and somehow they managed to have a goalless first half, but I think second half में like things became really tough. So I think yeah, there wasn't much hope, but I think yeah, I think the best hope for them is to maybe win the next two matches, Uzbekistan and Syria के against है। So that is something उज्बेकिस्तान एक अच्छी टीम player। है शक्ति। उज्बेकिस्तान इज अ वेरी गुड टीम इन एशिया। हम्म। ओनली रियल चांस वी हैव इज टू डिफीट सीरिया, एंड जो थर्ड होता है ना, थर्ड बंदे जो जाते हैं किसी किसी ग्रुप से, हम्म। उससे हम जा सकते हैं। अदरवाइज ग्रुप भी इस बार बहुत खराब मिला है, हम्म। क्योंकि जब पिछले बार का शिखर को याद होगा तो हम थाईलैंड को हिस्टोरिक 4-1 गोल हराए थे, जिसमें सुनील छेत्री शायद हैट्रिक मारा था। कुछ याद आ रहा है शिखर? हाँ हाँ हाँ।
वो तो लास्ट वो तो कोई वो टूर्नामेंट था, ट्राई नेशन टूर्नामेंट ऐसा कुछ था वो। ना ना हम्म ना, एएफसी का भाई, सर्च कर लेना। मेरे एएफसी को वो अच्छे कप, से बहुत अच्छा याद है। वो रिसेंट तो बोल एएफसी रहे कप था। हैं। वो नॉट, दैट वाज नॉट एएफसी एशियन कप, वो शायद एएफसी कप था। एशियन कप था भाई, एएफसी एशियन कप ही था। नहीं नहीं, एएफसी एशियन कप में तो इंडिया क्वालिफाई नहीं होती थी। चल लगा, चलो ठीक है, तू शर्त लगा लेना मेरे से। ठीक है, बाद में वही चेक था करेंगे। यार। बट हाँ। बट हाँ, मैं बोलना चाहता था कि यार जैक्सन अरवाइन जो पहला गोल मारा, इट वाज एन एरर फ्रॉम हम्म गुरप्रीत। एंड मतलब कि मुझे या बहुत या डिसअपॉइंटिंग लगा कि गुरप्रीत सिंह संधू मतलब इतना इंटरनेशनल हम्म लेवल पे भी खेला है, यूरोप में भी खेला है फुटबॉल, और इतना हम्म बेसिक एरर उसने किया। तो बहुत आई वॉज रियली बहुत बेसिक डिसअपॉइंटेड, रहा। मतलब कि और जैक्सन अरवाइन हम्म को मैंने वर्ल्ड कप में भी देखा है, मतलब कतार में जो वर्ल्ड कप हुआ था लास्ट ईयर, वहां पे भी वो अच्छा खेला था। तो इट वाज अ इजी, मतलब कि गोल गिफ्टेड टू हिम। और एक बार 1-0 या हुआ तो इंडिया हैड नो चांस, मतलब कि वहां पे ही या पता था कि अ स्ट्रॉन्ग यूनिट लाइक ऑस्ट्रेलिया विल शट देम डाउन। वैसे भी इंडिया के पास सहल अब्दुल समाद नहीं था, और दे वर मिसिंग हाँ, lot of players were not there. Yeah. लॉट ऑफ प्लेयर्स वर नॉट देयर। और ऊपर से आई थिंक टांग, देयर इज वन प्लेयर कॉल्ड टांगरी, हम्म, जिसने बहुत अच्छा दीपक टांगरी। जिसने बहुत अच्छा डिफेंसिव डिस्प्ले दिखाया है, मतलब कि या बट स्टिल आई वाज एक्सपेक्टिंग 3-0, तो 2-0 इज फील्स लाइक अ विन ओनली, क्योंकि मैंने 3-0 to 4-0 एक्सपेक्ट किया था ये मैच में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। बहुत एक्चुअली अच्छा इट किए इज कि वेरी सिमिलर टू जब ऑस्ट्रेलिया वाले हॉकी में खेलते हैं इंडिया के साथ। मतलब एवरीवन हम्म नोज दैट इंडिया इज गोइंग टू लूज, जस्ट द हम्म मार्जिन इज समथिंग नो, दे आर यू सो हैव टू थिंक ऑफ। सो पैथेटिक गाइस। वो हमको 8-0 6-0 से नीचे नहीं हराते ऑस्ट्रेलिया वाले, बड़े टूर्नामेंट। वो सीरियसली। तो या कॉमनवेल्थ गेम्स में 8-0 हराए थे फाइनल में दिल्ली में। 8-0 हो रहा था। शिखर, अगर मतलब मैं तो गया था, हम 12th जस्ट पास किए थे, मैं हम्म चला गया था दिल्ली में वो पूरा देखने। तो ह्यूमिलिएशन मैं, देखने। नहीं ह्यूमिलिएशन क्या, मैं तो था उसमें। हम्म मनमोहन सिंह जी थे, वो प्राइज प्रेजेंटेशन कर रहे थे, और मैं अकेला वहां से ऑस्ट्रेलियन एडवांस फेयर में खड़ा हुआ था। बाकी कोई सब चले गए थे, पूरा क्राउड खाली था ध्यानचंद स्टेडियम में। जैसे अहमदाबाद में कुछ महीने पहले जो सीन था, मतलब वही सीन था। क्योंकि बट क्योंकि मुझे इतना रोना आ रहा था शिखर। 14, आज भी मुझे दिन याद है, 14 अक्टूबर 2010। अच्छा अच्छा, वो तूने मतलब 19 नवंबर नहीं बोला, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, हम्म, वी कांट कैच अ ब्रेक फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया भाई। मतलब सुमित नागल ऑस्ट्रेलिया जाके और किसी और कंट्री के भी प्लेयर को हरा रहे हैं, मुझे खुशी हो रहा है कि चलो ऑस्ट्रेलियन क्राउड के सामने किसी को तो हराया। मतलब इट्स जस्ट अ ट्रेविस्टी, मतलब ऑस्ट्रेलिया हमें जो कर रहे हैं हमारे साथ, हमारे स्पोर्टिंग हम्म, मतलब इट्स जस्ट, मतलब क्या यार, मतलब कहीं तो हरा दो ऑस्ट्रेलिया, कबड्डी ही खेल लो भाई ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसी में हरा दो यार उनको। तो एनीवे, आई थिंक इट्स टाइम टू क्लोज, सो या मैं अभी देखते हैं, लॉट ऑफ थिंग्स टू लुक फॉरवर्ड टू। ऑस्ट्रेलियन ओपन इज गोइंग ऑन, Djokovic also lost a set in his first game against a qualifier, but then he recovered to win. And वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड कि इस बार जो ओलंपिक्स होगा, इट इज क्वाइट स्पेशल। रोलैंड गैरोस में बॉक्सिंग फाइनल्स भी होंगे, सेमीफाइनल्स भी होंगे, मेडल मैचेस भी, और साथ हम्म में टेनिस के मैचेस भी होंगे। आई होप हम्म कि एंडी मरे का रिकॉर्ड नडाल तोड़े और ही गेट्स अ सेकंड ओलंपिक गोल्ड मेडल इन इंडिविजुअल। ही हैज अ हम्म वेरी गुड चांस। Rafael Nadal, the Hardik Pandya of Spain, in terms of ये injury.